children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 3 playing with numbers. This is class 6 NCERT maths. We are going to do some more divisibility rules. Okay, before starting the topic, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and other parts of chapter 3. So please check it out. Chapter 3 की जो topics है, without understanding the topics, you cannot continue with the next topic. Okay, so please watch the videos. Okay. So today's topic is some more divisibility rules. We have already seen that as for divisibility of numbers, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Divisibility rules we have already seen. Now we are going to see some more divisibility rules. Okay, क्या क्या है वो देखेंगे. First rule is if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. What do you mean by this? अगर एक नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, ओके, एक नंबर दूसरी नंबर से अगर डिविजिबल है वो उस फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. ओके, फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ 18. 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, ओके, देन 6, 9, देन 18. These are the factors of 18. ओके, सो इसमें हम एक फैक्टर लेंगे 9. ओके, कोई भी एक फैक्टर ले सकते हैं. आई एम टेकिंग 9. ओके, 9 अगर लेंगे तो नेम अ फैक्टर ऑफ 9. 9 की एक फैक्टर हमें निकालना है. 9 की कोई भी फैक्टर आप बता सकते हैं. 9 की क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 3, 9. ओके, सो अगर 3 लेंगे तो 3 क्या होगा? इज 3 अ फैक्टर ऑफ 18. 18 में 3 फैक्टर है या नहीं? यस, 18 में 3 इज अ फैक्टर. ओके, सो यस. नेक्स्ट वन, अनदर फैक्टर ऑफ 18. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 6. ओके, 6 लेंगे. अगर 6 लेंगे तो 6 की फैक्टर क्या है? 6 की क्या क्या फैक्टर है? 1, 2, 3, 6. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 2. ओके, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6. ओके, सो 2 डिवाइड्स 18. ओके, 2 टेबल में 18 आएगा. 18 इज डिविजिबल बाय 2. ओके, नेक्स्ट वन, कंसीडर 24. ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. 24 इट इज डिविजिबल बाय 8. ओके, 24 8 से डिविजिबल है. ओके, 24 में एक फैक्टर है 8. ओके, 24 में फैक्टर्स है और भी फैक्टर्स है 1, 2, 3, ओके, 4, 6, 8, 12, 24. ये सब तो फैक्टर्स है. ओके, सो उसमें से एक फैक्टर लेंगे 8. ओके, सो 8 एंड अदर फैक्टर्स ऑफ 8. ओके, 8 की अदर फैक्टर्स क्या क्या है? 8 की फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 4, 8 है. सो ये सब 24 में डिविजिबल होता है ना. सो 1 टेबल में भी 24 आता है, 2 टेबल में भी 24 आता है, 2 12 4 टेबल में भी 24 आता है, 4 6 then 8 table में भी 24 आता है. Okay, so at last what we can say, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. Okay, second rule is if a number is divisible by two co-prime numbers. Okay, what do you mean by co-prime numbers? Co-prime numbers means इसमें सिर्फ one factor होता है. Only one will be the common factor. Okay, that is called co-prime numbers. Okay, so if a number is divisible by two co-prime numbers, अगर दो co-prime numbers से एक number divisible है, then it is divisible by their products also. दो co-prime numbers से एक number अगर divisible है, then वो जो co-prime number की जो product है उससे भी वो divisible है. Okay, example 80. 80 is divisible by 4 and 5. 4 टेबल में भी 80 आता है, 5 टेबल में भी 80 आता है. ओके, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट. ओके, सो 20 से भी ये डिविजिबल है एंड 4 and 5 आर को-प्राइम नंबर्स. अगर 4 and 5 की फैक्टर्स हम निकालेंगे, ओके, 4 की फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 4. ओके, 5 की फैक्टर्स क्या है? 1, 5. सो दोनों में only one is the common factor, so these two numbers are called co-prime numbers. अगर दो co-prime numbers is divisible by a number, then their products is also divisible. Okay, 4 5s are 20. 80 is divisible by 20. उसकी product से भी divisible है 80. Okay, next one is 60. We'll take 60 as an example. 60 is divisible by 3 and 5. Okay, 3 and 5 से divisible है. Okay, which are co-primes? 3 and 5 की common factors 1 है, so it is a co-prime number. Okay, so which are co-prime? 60 is also divisible by क्या है? 3 5s are 15. So 15 से भी ये 60 divisible होता है. Okay, 60 divided by 15 divisible है. 60 is also divisible by 15. Okay, their product. Okay, next third rule is if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. दो आपको नंबर दिया है. ओके, अगर वो दोनों नंबर
एक नंबर से डिविजिबल है, कोई भी नंबर लेंगे हम, 2 नंबर्स, ओके, अगर वो दोनों नंबर एक नंबर से कॉमन नंबर से डिविजिबल है, ओके, देन देयर सम, उन दोनों नंबर को आप ऐड करोगे, दैट इज सम करने के बाद भी वो नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, ओके, वी विल सी सम एग्जांपल्स। 16 and 20, ओके, 16 and 20 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ओके, बुक में जो एग्जांपल दिया है, आई एम गिविंग दैट एग्जांपल, 16 and 20, ओके, 16 and 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 4, 4 टेबल में 16 आता है, 20 आता है, दोनों आता है, ओके, 4 टेबल में 4 4s are 16, then 4 5s are 20, so 16 and 20 are both divisible by 4, the number 16 plus 20 is 36, ओके, इसका सम हम उसके बाद देखेंगे, ओके, 16 plus 20 क्या है, 36, so 36 is also divisible by 4, ओके, 36 भी क्या होगा, 4 टेबल में आएगा, ओके, 4 9s are 36, ओके, so 16 and 20 divisible by 4, ओके, then उसका सम क्या है, 36, वो भी 4 में divisible है, ओके, one more example, 16 and 20 are both divisible by 2, 2 में डिविजिबल है 16 and 20, 16 plus 20 क्या है, उसका सम भी देखना है ना, उसका सम क्या है, 36 है, ओके, जो 36 है वो भी 2 में डिविजिबल है, अगर ये 16 and 20 2 में डिविजिबल है तो 36 is also divisible by 2, 2 टेबल में 36 आता है, ओके। फोर्थ रूल, if two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number, ओके, इसमें प्रीवियस रूल में हमने क्या देखा, सम देखा है, इसमें सेम रूल में आपको चेंज है, दैट इज डिफरेंस, ओके, उसमें एडिशन करने के बाद दैट इज जो सम मिलता है वो डिविजिबल है, इसमें डिफरेंस दैट इज सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो डिविजिबल बाय दैट नंबर, दैट इज इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय दैट नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, ओके। एग्जाम्पल, द नंबर 35 and 20, 35 and 20 के एग्जाम्पल हम लेंगे, इन दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है, तो डिफरेंस है 35 minus 20 that is 15, 15 is also divisible by 5, 15 क्या आएगा, 15 is also, that is 5 टेबल में 15 आएगा, 5 3s are 15, so 15 is also divisible by 5, okay। One more example we'll take 18 and 12, 18 and 12 are both divisible by 3, 3 से divisible है, so इसका डिफरेंस क्या है, 18 minus 12 is 6, so 6 is also divisible by 3, okay, ऐसे करके आप लोग एग्जांपल्स और भी करके देख सकते हैं, okay। Next topic is prime factorization, okay, we all know what is prime, what is the prime number, prime number that is 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर्स है, दैट इज ओनली 2 फैक्टर्स विल बी देयर, उसमें 1 एंड द नंबर एक्सेल, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे, ओके, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द बुक, ओके। When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. Thus, when we write 24 is equal to 3 multiplied by 8, we say that 24 has been factorized. Okay, so ये 3 and 8, that is when a number is expressed as a product of its factors. Okay, ये product है, ये इसकी factors है. When it is expressed as a product of its factors, okay, so then only it is factorized. That is, इसको हम क्या करेंगे, इसको और expand करेंगे. Okay, we say that 24 has been factorized. This is one of the factorization of 24. Okay, so हम देखेंगे और भी है 24 को और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, 24 को और कैसे स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं। ओके, 24 बहुत सारे टेबल्स में आता है ना। 24 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है। ओके, 2 टेबल में आता है, 3 टेबल, देन 4, देन 6, देन 8, देन 12, 24, इतनी सारे फैक्टर्स हैं। हम अभी देखेंगे 24 is equal to 2 multiplied by 12. ओके, सो 2 multiplied by 12 ऐसे करके हम और एक्सपैंड करेंगे, तब तक प्राइम आएगा ना, तब तक उसको एक्सपैंड करेंगे। ओके, सो 2 को तो और एक्सपैंड नहीं कर सकते, 12 को एक्सपैंड कर सकते हैं। 2 6 12 है। ओके, देन अगेन ये 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि प्राइम में आ गया। देन इसको भी 2 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा 2 को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन 6 को करेंगे 2 multiplied by 3। ओके, इससे ज्यादा इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। दिस इज द लास्ट। ओके, नेक्स्ट 24 को भी हम क्या करेंगे, 4 6 24 है। ओके, सो 4 को भी और एक्सपैंड कर सकते हैं, 6 को भी और एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, 4 को कैसे करेंगे, 2 multiplied by 2, देन
इसको 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, सो इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि इट इज फैक्टराइज्ड, ओके, इससे ज्यादा नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट 24 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, ओके, सो 3 को, ये 3 तो प्राइम है तो एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, और देन 8 को तो कर सकते हैं, ओके, 2 4 8, ओके, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को तो और एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, देन 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं, ओके, सो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, सो ये तीनों आप देख रहे हो, ओके, ये तीनों आप देखोगे तो इसमें जो फैक्टर्स है क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, इसमें सारे जो हमने एक्सपैंड किया है सारे जो फैक्टर्स है सेम है, okay, in all the above factorizations of 24 we ultimately arrive at only one factorization, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3, okay, in this factorization the only factors, इसमें क्या फैक्टर्स है 2 and 3, बस यही है, 2 रिपीट हो रहे हैं and 3 है, okay, 2 and 3 are prime numbers, okay, such a factorization of a number, okay, ऐसे टाइप का जो factorization of numbers को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ओके, आपको अलग से पता है प्राइम नंबर क्या है, ओके, फैक्टर्स क्या है, इन दोनों को हम मिला के अभी मैंने बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ओके, एक्सपैंड करने के बाद इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगा, और ये तीनों में आप कैसे भी एक्सपैंड करोगे प्रोडक्ट को फैक्टर्स के साथ एक्सपैंड करते जाओगे तो भी आपको ये सेम फैक्टराइजेशन मिलेगा, ओके, सो एट लास्ट अ फैक्टराइजेशन इज प्राइम, कब फैक्टराइजेशन वो प्राइम बोलते हैं, इफ ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सारे जो फैक्टर्स है वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर्स हमें पता है क्या क्या है, तो वो प्राइम नंबर्स में होना चाहिए ये फैक्टर्स, ओके, फैक्टराइजेशन इज प्राइम इफ ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, ओके। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में हम चेक करेंगे, लेट अस, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर लेंगे 36, ओके, लेट अस चेक दिस फॉर द नंबर 36, ओके, सो 36 का भी चेक करेंगे, सो 36 को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, ओके, कोई भी नंबर के साथ, दैट इज 36 कौन सी टेबल में आता है वैसे करके हमने एक्सपैंड किया है, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, देन 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, हमें क्या करना है, इसको अलग अलग फैक्टराइजेशन निकालना है, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 को 2 9s, ओके, 2 9s करेंगे, देन उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे ज्यादा 2 को प्राइम नंबर हो गया है इसलिए इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते, ओके, देन 9 को 3 3s 9, ओके, सो ये है इसकी 36 की, दैट इज 2 18s 36, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हम बाकी तीनों का भी चेक करेंगे, ओके, ओके, सो इसमें 2 दैट इज 3 12s 36, ओके, 3 को हम ऐसे की ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, देन 12 को 3 4s 12 है, ओके, 2 6 का भी 2 6 12 भी लिख सकते हैं, ओके, दोनों सेम है, देख लेते हैं, ओके, नेक्स्ट इससे नेक्स्ट स्टेप इज, इसको 3 को ऐसे लिखेंगे, देन 3 को भी ऐसे रखेंगे क्योंकि और एक्सपैंड नहीं कर सकते, देन 2 2s 4, ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में रखेंगे, ओके, ताकि हमें पता चल जाएगा एक जैसे है नहीं है, ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, ये दोनों सेम हो गया है, ओके, नेक्स्ट वी विल टेक फॉर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 का सबसे पहले वाली स्टेप क्या है, 2 2s 4, 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, देन इसको 9 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, सो ये इससे ज्यादा इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, ओके, नेक्स्ट 6 को देखेंगे, 6 को पहले 6 को 2 3s 6, देन अगेन 2 3s 6, ओके, सो इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे बट इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 2 बार 3 2 बार 2 है इसलिए ऐसे फॉर्म में हमें लिख रही हूँ, ओके, ओके, सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
36 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Okay, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. ओके, इससे ज्यादा इसको नहीं कर सकते, इससे क्योंकि ये क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नेक्स्ट इसको अदर वे में क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री भी बोलते हैं. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन को अदर नेम इज फैक्टर ट्री. ओके, हम इसको एक्सपैंड करते जाएंगे, इसलिए हम इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं. ओके, सो अभी एक ही नंबर का करेंगे. इसमें 36 को हम ऐसे किया है. ओके, 1 2 3 4 4 मेथड्स में किया है. इसमें 90 को हम क्या करेंगे, एक ही बार करेंगे. 90 बहुत सारी टेबल्स में इसकी फैक्टर्स है, सो बहुत सारी टेबल्स में आता है, बट वी विल डू फॉर ओनली 1 10 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके, थिंक ऑफ अ फैक्टर पैर से 90. ओके, सो 90 को हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे. अभी इसको और एक्सपैंड करेंगे. 10 को 2 5s are 10. ओके, 2 5s are 10. देन 9 को 3 3s are 9. Okay, so these are the factors of 90. Try this for the numbers 8. 8 के लिए हमें ये फैक्टर ट्री मेथड हम ट्राई करेंगे. 8 कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, 2 4s are 8. ओके, 2 को और नहीं एक्सपैंड कर सकते. नेक्स्ट इसको 4 को कर सकते हैं. ओके, 2 2s are 4. ओके, ये इससे आगे नहीं कर सकते हैं. सो इसमें फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, नेक्स्ट 12 को हम एक्सपैंड करेंगे. ओके, फैक्टर ट्री मेथड में 2 6 are 12. ओके, 6 को और कर सकते हैं. 2 3s are 6. Okay, so prime factorization of 12 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Okay, इसको लिखेंगे, इसको that is जो लास्ट वाली जो नंबर है उसी को ही लिखेंगे, that is 2 2 3. Okay, next try these questions here. This is also from page number 61. Okay, write the prime factorization of 16. 16 की prime factorization हमें निकालना है. फैक्टर ट्री मेथड में करेंगे. 16 को 2 8s are 16. ओके, देन इसको 8 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 4s are 8. ओके, अगेन इसको कैसे कर सकते हैं, ओके, 2 2s are 4. सो व्हाट आर दी नंबर्स, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. ओके, नेक्स्ट 28 का हम करेंगे. 28 कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, 7 4s are 28. ओके, 7 को और एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर आ गया है. नेक्स्ट 4 को तो कर सकते हैं, 2 2s are. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नेक्स्ट 38 को हम करेंगे. ओके, 2 19s are 38. 2 is a prime number, so we cannot expand. ओके, उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते. 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. ओके, सो इसको भी और एक्सपैंड नहीं कर सकते. सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38. एग्जाम्पल 7. This is also from page number 61. Okay, find the prime factorization of 980. Okay, ये बड़ा नंबर है, वो छोटा छोटा नंबर है, इजिली हम फैक्टर ट्री मेथड में कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं. ओके, डिवाइड करके हमें पता होना चाहिए. ओके, सो इसमें ऐसे मेथड में हम करेंगे. ओके, ओके, सो 980 हमने लिख दिया. ओके, सो फर्स्ट हम स्मॉल नंबर से लेंगे 2 टेबल में. ओके, 2 4s are 8. ओके, देन 2 9s are 18 0. ओके, डिवाइड करके देखने से पता चल जाएगा, ये तो आप सीधा भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अगेन 2 टेबल में ये आएगा. ओके, 2 2s are 4, देन 2 4s are 8, 2 5s are 10. ओके, 3 टेबल में करके देखेंगे. ओके, 3 ये 3 टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि 3 8s are 24 के बाद 5 रिमाइंडर हो जाएगा. सो हम 5 में चेक करेंगे. ओके, 5 टेबल में तो पक्का आएगा. 245 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 5 4s are 20. ओके, देन 4 5 को नीचे लेके आएंगे, 5 9s are 45. ओके, सो 5 49s are क्या है, 245. 7 में तो आएगा 7 7s are
49. ओके, ये जो 7 है 7 1s are 7. इससे ज्यादा हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन of 980 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 7. Okay, these are the prime factorization of 980. That is 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 7. Okay, so in this class we learned about some more divisibility rules. 4 rules we learned and prime factorization also we learned. Prime factorization के नीचे factor tree भी हमने किया है, learn किया है. We also know how to do factor tree. Okay, then we have solved one example and try these questions also. So that's all for today. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and other parts of chapter 3. So please check it out. That's all for today. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.